Topic of our today's session is market outlook and Tata Nifty Midcap 150 Index Fund NFO. For this, we have invited Mr. Rohit Agarwal, Head Alliances, ND and FinTech, Tata AMC. Over to you, sir. And good evening, everyone, and welcome to the call. I think our topic is basically divided into two parts. One is a little bit about equity market outlook, and then obviously our NFO, which has started yesterday only, which is Nifty Midcap 150 Index Fund. So, if we talk about equity markets, I think overall we all are seeing the markets have been range bound only. And in terms of the events, if we see recently, it's the quarterly results season for is about to end. So, if we have to look out at overall results on the corporate sides, were comparatively on the average side. But the positive thing is that versus last quarters, the number of downgrades are lower than the number of upgrades in fact. So और अगर हम अपने macros की बात करें तो I think fiscal policy and monetary policy are going in tandem, which is a positive sign for the growth further. And the way interest rates are expected to go down, and our fiscal deficit is in comparatively control, so we believe that the consumption story which can pick up from here, so the consumption recovery can happen from here. That is one. And on the theme side, if you look out at, I think because of some geopolitical tensions we have seen in the recent past, themes like defense has worked very well. But overall, in this kind of a scenario where the market is comparatively, at a fair valuation, and the themes, market is now, moving out of the phase where the themes would be working. सो जहाँ पर हम बोलते हैं कि हाँ ये इस पर्टिकुलर एक सेक्टर में पैसा डाल दो तो शायद पैसा बन जाएगा. सो आई थिंक मार्केट उस फेज से थोड़ा दूर जा रही है, एंड इट इज एक्सपेक्टेड मोर ऑफ अ बॉटम अप मार्केट नाउ. सो वेयर स्टॉक पिकिंग विल बी डूइंग द वर्क. सो इसलिए आई थिंक इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एट दिस पॉइंट इन टाइम वी शुड stick to the asset allocation of the customers according to their risk appetite, according to their portfolio allocation. सो हमको एसेट एलोकेशन जो है वो मेंटेन करके रखना चाहिए. एसेट एलोकेशन की जब बात करते हैं तो एसेट एलोकेशन across asset classes also, so whether it is debt, whether it is equity, whether it is gold, so उन सब में भी एसेट एलोकेशन मेंटेन करना चाहिए. और जब हम अगेन इक्विटी में फर्दर एसेट एलोकेशन की बात करते हैं तो एसेट एलोकेशन अमंग द लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, or maybe on the particular themes also, the asset allocation should be maintained. So that is where I think it is very important today, because normally क्या होता है कि जब भी मार्केट में थोड़ी वोलाटिलिटी आती है, so हम लोग थोड़ा फियर की वजह से अपनी एसेट एलोकेशन को उल्टा इक्विटी के एलोकेशन को कम कर देते हैं. So that should not be the case in today's scenario. We should stick to the asset allocation, but yes, definitely we should be very wisely choose which kind of a products where we should be investing at this point in time. So I think अगर asset allocation की बात करते हैं, and with this tandem only, I think linking to this particular thought only, I would say this mid cap 150 index fund also gets in line with that. My screen is visible. Can someone confirm? Anshu, my screen is visible. It's visible. I've shared the PPT. Anshu, Rajat, anybody can tell me if the screen is visible? It is visible, sir. Okay, done. Thanks. Visible. Okay, sure. So I think moving on to this particular fund, wherein obviously, as the name suggests, it's a pure mid cap fund, and it will be replicating the Nifty 150 mid cap index. एंड तो अगर हम बेसिक बात करें, मतलब मिड कैप क्या होते हैं, हर कंपनी जो है एक फेज से गुजरती है. एक नई कंपनी जब स्टार्ट होती है, जब वो आइडिएशन फेज में होती है, अपने सर्वाइवल फेज में होती है, तब वो एक स्मॉल कैप होती है. उसके बाद जब उसका एक ग्रोथ का फेज आता है और एक कंसिस्टेंसी आती है उस कंपनी में, तब वो मिड कैप होती है. और उसके बाद व्हेन इट एक्सपैंड्स फर्दर,
एंड मूव्स टुवर्ड अ मैच्योर फेज, बड़ी बन जाती है, तो उस टाइम पे वो अपने लार्ज कैप फेज में होती है। तो मिड कैप कुछ ऐसा नहीं है कि हाँ कोई कुछ स्पेशल ही है जो है मिड कैप है, या कोई स्पेशल है जो स्मॉल कैप है। इट्स द साइकिल ऑफ द कंपनी, द लाइफ साइकिल ऑफ द कंपनी वेयर इन इट गोज थ्रू ऑल थ्री फेजेस। और अगर डेफिनेशन की बात करें तो 1 लाख करोड़ के ऊपर के जो मार्केट कैप की टॉप 100 कंपनीज हैं वो लार्ज कैप में आती हैं। 1 लाख करोड़ से 33,000 करोड़ का मार्केट कैप के बिटवीन के जो 150 स्टॉक्स हैं वो मिड कैप में आते हैं, और लेस देन 33,000 फ्रॉम 251 स्टॉक ऑनवर्ड्स जो कंपनीज हैं उनको हम स्मॉल कैप बोलते हैं। सो व्हाई मिड कैप्स? तो मिड कैप्स में हमें क्यों डालना चाहिए? तो मिड कैप्स में अगर हम देखें, यू हैव द लार्जेस्ट एक्सपोजर टू अदर सेक्टर्स आल्सो, ग्रोथ पोटेंशियल इज कंपैरेटिवली हायर, बिकॉज सिर्फ लार्ज कैप में जैसे बहुत कंसिस्टेंट स्टॉक्स में डाइवर्सिफिकेशन होती है, उससे बेटर लाइक फॉर एग्जांपल कैपिटल गुड्स, केमिकल, तो इस तरह के सेक्टर्स भी हैं जहां पर मोर डाइवर्सिफिकेशन अवेलेबल है, जिनमें की ग्रोथ पोटेंशियल कंपैरेटिवली हायर है। बैलेंस है बिटवीन स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ। सो लाइक फॉर एग्जांपल जो भी हमने बात किया कि मिड कैप जो है वो स्मॉल कैप से बड़े होते हैं, लेकिन लार्ज कैप से कंपैरेटिवली छोटे होते हैं, और छोटे होते हैं तो वो निम्बल भी ज्यादा होते हैं। इफ वी टॉक ऑफ निम्बलनेस मींस कि उनके इफ दे वांट टू अडॉप्ट समथिंग न्यू, इफ दे वांट टू चेंज इन देयर पॉलिसी और इन देयर एग्जीक्यूशन और इवन इन सम इनोवेशन, सो दे हैव द कैपेसिटी टू डू इट फास्टर देन लार्ज कैप्स। तो फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं अपना बैंकिंग सेगमेंट की, अगर हम बात करें तो फ्यू टाइम बैक वी मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट ऑल द बैंकिंग ट्रांजैक्शन एंड इवन द बैक एंड वर्किंग ऑफ द बैंक्स हैज मूव गॉट डिजिटलाइज्ड। तो सब कुछ कंप्यूटराइज हो गया है, ट्रांजैक्शन भी, बैक एंड पे भी। सो आई थिंक, लेकिन अगर आप देखो तो इंडिया का जो सबसे बड़ा नेशनलाइज बैंक है उसको वो अडाप्ट करने में थोड़ा टाइम ज्यादा लगा कंपैरेटिव टू द अदर स्मॉलर बैंक्स। सो दैट इज वेयर वी आर टॉकिंग ऑफ द निम्बलनेस। तो निम्बलनेस जो है टू अडॉप्ट द न्यू टेक्नोलॉजी और टू डू एनी चेंज, वो मिड कैप्स में कंपैरेटिवली कैपेबिलिटी ज्यादा होती है रेदर देन द लार्ज कैप्स। ऐसा नहीं है कि लार्ज कैप कर नहीं पाते हैं, बट लेकिन कंपैरेटिवली मिड कैप्स फास्टर कर पाते हैं। थर्ड अगर हम देखें तो मार्केट लीडर्स जो हैं वो भी हमें मिड कैप में मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि हम बोले कि हाँ सिर्फ ब्लू चिप्स में मार्केट लीडर्स हैं। सो मिड कैप्स ही हैं जो कल के आने वाले समय के ब्लू चिप्स बनते हैं। सो आई थिंक पिछले 5 साल में अगर हम देखें तो देयर आर सम 17 मिड कैप स्टॉक्स विच हैव मूव्ड मिड कैप टू लार्ज कैप्स। सो मैं जिन स्टॉक्स के एग्जांपल दूंगा वो सिर्फ एग्जांपल के लिए हैं, मतलब दीज आर नॉट एनी रिकमेंडेशन टू इन्वेस्ट। सो लाइक फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें वरुण बेवरेजेस का मार्केट कैप एक्सपेंशन हैज बीन 17 टाइम्स इन लास्ट 5 इयर्स, और वो मिड कैप से लार्ज कैप हो गया है। और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट कैप एक्सपेंशन बाय सम 8x इन द लास्ट 5 इयर्स एंड इट हैज बिकम अ लार्ज कैप। टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स की अगर हम बात करते हैं, मार्केट एक्सपेंशन हैज बीन 7 टाइम्स एंड अगेन इट हैज बिकम अ लार्ज कैप। सो देयर आर लॉट ऑफ मेनी एग्जांपल्स की जो स्टॉक, जो कंपनीज अपने एक ग्रोथ फेज को क्रॉस कर जाती हैं और उसके बाद दे एक्सपैंड टू बिकम लार्जर, तो वो लार्ज कैप्स में चली जाती हैं, दे बिकम मैच्योर कंपनीज। सो वो भी हमें एक क्राइटेरिया मिलता है कि मिड कैप्स में ग्रोथ का पोटेंशियल, ग्रोथ फेज में जब हम पार्टिसिपेट करते हैं उनके इन्वेस्टमेंट में, तो वी ऑल्सो गेट द चांसेस ऑफ गेटिंग बेटर रिटर्न्स आर हायर। सो सिमिलरली डाइवर्सिफिकेशन की अगर बात करें तो मिड कैप्स आर कंपैरेटिवली मोर डाइवर्सिफाइड। इसको हम अगली स्लाइड में और अच्छे से समझते हैं। सो ये सेक्टर एलोकेशन दिया हुआ है मिड कैप का और लार्ज कैप का। तो मिड कैप 150 वर्सेस लार्ज कैप 100। तो अगर आप देखो कि अगर हम लोअर पार्ट ऑफ द ग्राफ में जाते हैं तो बैंकिंग, फाइनेंशियल, ऑयल एंड गैस, एफएमसीजी, आईटी, ये 4 सेक्टर को ही अगर हम ले लें तो 65% एक्सपोजर ये 4 सेक्टर में ही आ जाता है इफ यू कंसीडर लार्ज कैप्स। तो इसी 4 सेक्टर में मेजर एलोकेशन चला जाता है 65%। रेस्ट ऑल द सेगमेंट्स कंपैरेटिवली 2%, 1%, 3% तरह का डाइवर्सिफिकेशन मिलता है। वेदर अगर हम यही मिड कैप्स की बात करें तो इन 4 सेक्टर में एक्सपोजर है, बट दैट 4 सेक्टर का एक्सपोजर इज राउंडेड ऑफ नियरली टू 40%। एंड देन देयर इज मीनिंगफुल एक्सपोजर टू अदर सेक्टर्स ऑल्सो, लाइक कैपिटल गुड्स में 13%, हेल्थ केयर में 11%, केमिकल्स में 6%, और देर आर मेनी सेक्टर्स लाइक टेक्सटाइल, मीडिया एंड एंटरटेनमेंट, जो कि लार्ज कैप में हमें डाइवर्सिफिकेशन मिलता ही नहीं है। सो कंपैरेटिवली डाइवर्सिफिकेशन इज बेटर एंड मीनिंगफुल अलोकेशन टुवर्ड सम ऑफ द सेक्टर्स जो हमें मिलती है इनटू मिड कैप्स, जो कि हमें लार्ज कैप में इन्वेस्ट करने पे नहीं मिलती। और नेक्स्ट अगर इसका देखें, देर आर मेनी थीम्स जो कि लार्ज कैप से डिफरेंट हैं जिसमें हम इन्वेस्ट कर पाते हैं। फॉर एग्जांपल चाइना प्लस वन,
तो चाइना प्लस वन विच इज आर इंडिया, मेक इन इंडिया का स्टोरी है, एंड ओवरऑल इफ वी लुक आउट एट वेयर वी बिलीव दैट वी विल बी बेनिफिटिंग इन द वर्ल्ड, सो उसमें कुछ सेक्टर्स लाइक केमिकल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेक्सटाइल्स जो हमें मिड कैप में ही मिलते हैं। कुछ डोमेस्टिक एक्सपोजर हैं, जैसे हमने बैंकिंग की बात करी, तो लार्ज कैप में हमें बैंक्स तो मिलते हैं, लेकिन हमें न्यू एज फिनटेक कंपनीज, एसेट मैनेजमेंट कंपनीज, इंश्योरेंस कंपनीज, ये सब में एक्सपोजर नहीं मिल पाता है, रियल एस्टेट में एक्सपोजर नहीं मिल पाता है। सो दैट इज वेयर दीज आर डिफरेंट फ्रॉम लार्ज कैप्स। हेल्थ केयर में लाइक फॉर एग्जांपल हमको हॉस्पिटल्स में एक्सपोजर अगर हम लें, विच इज़ अ वेरी गुड ग्रोइंग इंडस्ट्री इनटू इंडिया, तो उसमें अगर हम देखें तो हमें मिड कैप में एक्सपोजर मिलता है। वेरी अदर लाइफस्टाइल कंपनीज, फॉर एग्जांपल क्विक सर्विंग रेस्टोरेंट्स, वायर्स एंड केबल्स, तो ये सब एक्सपोजर हमको लार्ज कैप्स में नहीं मिल पाते हैं, जो कि हमें मिड कैप में मिल जाता है, विच आर वेरी ग्रोइंग एंड ग्रोथ ओरिएंटेड स्कीम्स और थीम्स विच आर इन प्रेजेंट इन इंडिया। सो ये कुछ इंडस्ट्रीज के एग्जांपल हैं। तो अगर हम ओवरऑल बात करें, देयर आर सम 39 बेसिक इंडस्ट्रीज जिनका एक्सपोजर मिड कैप में मिल पाता है लेकिन लार्ज कैप में नहीं मिल पाता। तो उसी के कुछ उदाहरण हमने दे रखे हैं, लाइक ऑटो कंपोनेंट्स, फार्मास्यूटिकल, हॉस्पिटल्स, जिनमें अगर आप देखो लार्ज कैप में बहुत ही मिनिस्क्यूल एक्सपोजर है, लेकिन मिड कैप में एक मीनिंगफुल डाइवर्सिफिकेशन मिलता है। और देयर आर सर्टेन इंडस्ट्रीज जिनका लार्ज कैप में एक्सपोजर है ही नहीं, जैसा हमने बात किया फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज का, एक्सचेंज और डेटा प्लेटफॉर्म्स, पेस्टिसाइड, एग्रोकेमिकल्स, तो इनका एक्सपोजर जो है वो लार्ज कैप्स में है ही नहीं, लेकिन मिड कैप में हमें ये डाइवर्सिफिकेशन भी मिल जाता है। ऐसी कुछ कंपनीज जो हैं वो ओवरऑल 40% एक्सपोजर जो है उसका टोटल वेट इस मिड कैप इंडेक्स के अंदर है, जो कि हमें लार्ज कैप में नहीं मिलता। तो 40% से डाइवर्सिफिकेशन इज बेटर इनटू दिस मिड कैप 150 इंडेक्स। आई थिंक एक हमने जो बात करी डाइवर्सिफिकेशन की, डाइवर्सिफिकेशन अगर हम देखें तो हमने पिछले 3 स्लाइड्स में देखा कि डाइवर्सिफिकेशन जो है वो एक एडेड एडवांटेज है व्हाइल इन्वेस्टिंग इनटू मिड कैप्स। सेकंड, जब हम बात करते हैं वी ऑलवेज से कि हाँ बड़ी कंपनी या मार्केट लीडर एक पर्टिकुलर सेगमेंट का, वो सिर्फ लार्ज कैप में ही मिलता है, कि बैंकिंग में कोई बड़ा बैंक लार्ज कैप ही हो सकता है, या मतलब और कोई आईटी कंपनी में कोई बड़ा आईटी कंपनी, कि हमें लगता है कि सबसे बड़ी कंपनी जो मार्केट लीडर होती है किसी भी सेगमेंट में वो लार्ज कैप में ही होती है। जबकि ये ट्रू नहीं है। अगर हम मिड कैप में भी जाएं, देयर आर मेनी सेगमेंट्स, देयर आर मेनी सेक्टर्स और इंडस्ट्रीज जिनके लीडर्स हमको मिड कैप में मिलते हैं। फॉर एग्जांपल एयर कंडीशनर की अगर हम बात करें तो वी ऑल नो ब्लू स्टार इज अ कंपनी, राइट, विच इज वन ऑफ द लीडिंग कंपनी इनटू इंडिया इनटू दिस सेगमेंट। अगर हम गारमेंट्स की बात करें तो पेज इंडस्ट्रीज, आई थिंक वी ऑल नो, है ना, द ब्रांड जॉकी, सो आई थिंक दिस इज वन ऑफ द लीडिंग इंडस्ट्री, लीडिंग कंपनी इनटू दिस पर्टिकुलर सेगमेंट विच इज प्रेजेंट। हम एएमसीज की बात करें तो वी ऑल नो, मतलब जो एएमसीज लिस्टेड हैं, द लार्जर एएमसीज विच आर लिस्टेड इन इंडिया, दे आर प्रेजेंट इन मिड कैप्स ओनली। अगर हम फुटवेयर की बात करें तो आई थिंक रिलैक्सो इज द कंपनी। हम होटल्स की बात करें, IHCL। आई थिंक ये सब अपने सेगमेंट में मार्केट लीडर्स हैं, लेकिन इनका एक्सपोजर हमें मिड कैप में मिलता है, लार्ज कैप में नहीं मिलता। देयर आर कंपनीज विच आर मार्केट लीडर्स into their own segment, but they are present into mid caps as well. ये कुछ यूनिक इंडस्ट्रीज हैं जो मिड कैप में मिलती हैं, जैसे हमने बात किया था कि 39 इंडस्ट्रीज हैं जिनका एक्सपोजर सिर्फ मिड कैप में मिलता है। दीज आर सम ऑफ द लिस्टिंग, कास्टिंग एंड फोर्जिंग, फर्टिलाइजर्स, जिंक, इंडस्ट्रियल गैसेस, एक्सप्लोजिव्स। ये कुछ कंपनीज हैं जिनका एक्सपोजर हमें मिड कैप में ही मिलता है। Average, I think second point to conclude, one was obviously diversification, and the second point to conclude is that there are market leaders in which if we want to invest into particular market leaders into particular industry, वो हमको mid cap में मिल जाते हैं। तो थर्ड पॉइंट आता है कि मिड कैप ग्रो कैसे कर रहे हैं ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। तो ये पिछले 10 साल का डेटा है। पिछले 10 साल में अगर हम देखें तो मिड कैप्स का मार्केट कैप जो है वो हैज ग्रोन फास्टर देन आवर जीडीपी। लेकिन अगर हम उसका रेशो भी देखते हैं तो इट इज नॉट कि उनका मार्केट कैप बड़ा है, लेकिन अगर उनका टोटल मार्केट कैप ऑफ मिड कंपनीज जो है उसका एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी रेशो देखते हैं, वो भी डबल हो गया है। तो FY15 में वो 12% होता था मार्केट कैप टू जीडीपी, अब वो मार्केट कैप टू जीडीपी 24% हो गया है। गिवन द डाइवर्सिफाइड नेचर ऑफ मिड कैप, इट विल कंटिन्यू टू रिमेन रेलिवेंट एंड एड टू द कंट्रीज जीडीपी फर्दर। दिस इज वेरी रेलिवेंट फ्रॉम आवर जीडीपी नंबर्स कि मिड कैप में उनका जो मिड कैप का जो कंट्रीब्यूशन है टू जीडीपी, दैट हैज आल्सो बीन डबल्ड इन द लास्ट 10 years। एक चौथे नंबर पे सबसे बड़ा आज की डेट में सवाल आता है कि वैल्यूएशंस जो है ना वो बहुत हाई है मिड कैप्स में,
and we keep on hearing commentaries from fund managers also, various market analysts also कि हाँ valuations are high. Answer is yes, our valuations are comparatively higher. The answer is yes. और उससे भी तो मैं डिनाई नहीं कर सकता. लेकिन हम उस डेटा को थोड़ा और अच्छे से अगर देखें तो ये चार्ट में ये दिखाया है कि पिछले 10 साल का एवरेज पीई जो मिड कैप इंडेक्स का है वो 22.5 रहा है, और पिछले 10 साल में एवरेज पीई से ऊपर भी रहे हैं सम ईयर्स, और सम ईयर्स एवरेज पीई से नीचे भी रहे हैं. लेकिन अगर आप देखो अक्रॉस ऑल द 9 ईयर्स whatever the PE is, whether lower or higher, next 3 साल का CAGR is a decent return on the positive side. एक एक्सेप्शन है FY17 जब आपको अगले 3 साल का रिटर्न नेगेटिव दिख रहा है, बट दैट इज बिकॉज देन अगर आप अगला 3 साल में जाओगे तो यू विल एंड अप इन FY2021 के आसपास, विच वाज अ कोविड ईयर. तो उस टाइम पर बिकॉज ऑफ दैट मार्केट करेक्शन डेफिनेटली हमको ये रिटर्न नेगेटिव दिख रही है बिकॉज ऑफ अ पर्टिकुलर इंस्टेंस. बट अदरवाइज इफ यू लुक आउट एट, आई थिंक अगर पी जब अट्रैक्टिव थी, अगर हम बोलें वैल्यूएशंस वर वेरी फेयर वैल्यू, जब 17 थी या 19 थी, तब तो हमको रिटर्न 14% CAGR आया ही है. बट लेकिन अगर आप FY18 की बात करो व्हेन PE वाज हायर 23, FY21 की बात करो PE वाज हायर 25, FY22 में PE और हाई हो गई, इट मूव टू 26, और करंट PE की अगर हम बात करते हैं तो वो 31 है. सो आई एम नॉट सेइंग कि वैल्यूएशंस आर नॉट हाई, आई एम सेइंग यस वैल्यूएशंस आर कंपैरेटिवली ऑन हायर साइड. But if you see, still are there chances of making return if other things, other macroeconomic conditions are conducive for investment today in India? So can returns be made on the higher side, on the higher valuations as well? So yes, there are chances, but we always have to manage our risk appetite and our asset allocation intact across the categories, so as we are not missing out on any rally also. And also according to our risk appetite we are chasing our asset allocation also. So that's important. तो अगर FY21 में किसी ने पैसा लगाया होता और मिड कैप की वैल्यूएशन 25 पे थी तो उसको 28% CAGR मिला होता अगले 3 साल में. अगर 22 में लगाया होता तो 21% मिला होता CAGR. बट लेकिन अगर किसी ने ये सोच के कि नहीं एवरेज पी तो 22 है, मैं 25-26 पे अभी पैसा नहीं लगाऊं, तो ही वुड हैव मिस्ड ऑन दैट रैली. सेम इज द सिचुएशन टुडे आल्सो. So it is up to us, we have to take a call according to our asset allocation and risk appetite that what percentage of our portfolio should be into mid cap. But we also have to take a call, is it a time that we should be zero allocation into a mid call? So to my mind, I think that is not appropriate thing to do for the portfolio. एक और क्वेश्चन आता है कि FI के फ्लोज जो है वो हमारी मार्केट पे बहुत इंपैक्ट करते हैं इन अ पॉजिटिव वे एंड इन अ नेगेटिव वे. द आंसर इज अगेन यस, हाँ जी ऐसा होता है. लेकिन अगर हम देखें तो मिड कैप्स को कंपैरेटिवली देन लार्ज कैप्स ये कम इम्पैक्ट करते हैं, क्योंकि एफ की ओनरशिप अगर हम देखें तो लार्ज कैप्स में कुछ 21% है, लेकिन मिड कैप में वही ओनरशिप अराउंड 14% है. और मिड कैप में अगर आप देखो जो प्रमोटर की ओर्निंग्स है वो कंपैरेटिवली ओनरशिप ऑफ द प्रमोटर इज अबाउट 55%. सो इसलिए कंपैरेटिवली एफआई फ्लोज से मिड कैप्स आर इम्पैक्टेड, yes they are impacted, but comparatively less impacted as compared to large caps, so which is again on a positive side. So I think overall if we talk about mid cap as a segment today, that where we stand, number one important from diversification perspective, हम लोगों को एक मीनिंगफुल डाइवर्सिफिकेशन मिलता है अक्रॉस वेरियस सेक्टर्स जो कि हमको लार्ज कैप स्पेस में नहीं मिल पाता है, दैट इज वन. तो अपना एसेट एलोकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से वी शुड कंसीडर मिड कैप्स. Second, there are market leaders. It is a myth that market leaders are only present into large caps. There are many market leaders which are present into various industries, which gives exposure only into mid caps, which is not available into large caps. Number three, valuations are high. Yes, the answer is yes, valuations are high. But should we avoid totally mid cap today because of the higher valuations? The answer is no. I think we should maintain some allocation into our portfolio, into mid caps as well, because higher valuation doesn't mean that the chances of getting return in the next 3 to 5 years is zero. So the answer is no to that. And fourth point, if we look out at the FI flows impacts the mid cap segment as well, but comparatively lower than the large cap because the ownership is comparatively lower. So that is what about mid cap story if you look out at as of today.
एंड कमिंग ऑन टू दिस पर्टिकुलर फंड, तो अगर इस फंड की बात करें, टाटा निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स फंड, तो इसमें अप्रोक्सीमेटली 20 सेक्टर्स और 74 बेसिक इंडस्ट्रीज मिलती हैं। आई थिंक हम इन बेसिक इंडस्ट्रीज के बारे में बहुत अच्छे से पहले ही बात कर चुके हैं, जो हमें मिड कैप में एक्सपोजर मिलता है और क्या क्या परसेंटेजेस अवेलेबल हैं। ये इसका टॉप 10 स्टॉक्स और टॉप सेक्टर वेटेज है। सो आई थिंक स्टॉक्स पे बात नहीं करके अगर हम सेक्टर्स की बात करें, तो यू कैन सी हाउ वेल डाइवर्सिफाइड द पोर्टफोलियो इज। फाइनेंशियल सर्विसेज, कैपिटल गुड, हेल्थ केयर, आईटी, ऑटोमोबाइल, केमिकल, कंज्यूमर। सो एक मीनिंगफुल वेटेज है अक्रॉस टॉप 10 सेक्टर्स एज वेल। और उसके बाद मेन चीज आती है हाउ दिस मिड कैप 150 इंडेक्स हैज परफॉर्म्ड सो फार। सो अगर हम इसकी पिछले 20 साल का डेटा निकालते हैं सिंस 2005 टिल नाउ, तो अगर हम उसकी 1 ईयर रोलिंग, 3 ईयर रोलिंग, 5 ईयर रोलिंग या 10 ईयर रोलिंग रिटर्न लें in comparison to large caps, whether it's in Nifty 100 or Nifty 50, so we have seen always, I think mid caps has the potential to generate better returns. तो पिछले 10 साल में भी अगर आप देखो तो उन्होंने 4% CAGR का अल्फा क्रिएट किया है। पिछले 5 साल में भी अगर आप देखो तो अल्फा इज क्रिएटेड बाय अप्रोक्सीमेटली अगेन 4%. So I think that alpha has been created year on year, over the longer and even as well as the shorter tenures. नेक्स्ट सवाल आता है कि हाँ, रिटर्न तो जनरेट करी है बट मिड कैप में हम हायर रिस्क भी लेते हैं, तो क्या रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स भी बेटर है मिड कैप की, या रिस्क एडजस्टेड रिटर्न लोअर है देन निफ्टी 100 और निफ्टी 50? सो अगेन वी प्लॉटेड द डेटा फॉर लास्ट 15 years. तो उसमें हमने देखा कि इफ यू आर टेकिंग 1 rupee ऑफ रिस्क टू इन्वेस्ट इनटू अ मिड कैप, व्हाट काइंड ऑफ अ रिटर्न per unit of risk you are getting. So just apart from 1 year tenure, which is a very shorter tenure, जहां पर की risk adjusted return is lower into mid cap 150, अगर आप उसके बाद लॉन्ग टर्म में जाते हो 2 ईयर 3 ईयर, तो वेदर मीडियम टर्म है, बट 5 ईयर 10 ईयर 15 ईयर में भी अगर आप देखते हो अक्रॉस ऑल द टेन्योर्स, द रिस्क पर यूनिट ऑफ रिस्क, रिटर्न पर यूनिट ऑफ रिस्क इज बेटर इनटू मिड कैप 150. दिस स्लाइड इज वेरी इंटरेस्टिंग आई थिंक। इसमें हमने लिया है कि पिछले 20 साल में अगर किसी ने 10,000 की SIP करी होती निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स में, निफ्टी 100 में, निफ्टी 50 में और स्मॉल कैप 250 में, तो अगर इन चारों में SIP करी होती तो व्हाट कुड हैव बीन द रिटर्न्स इन XIRR फॉर्मेट? सो वेरी सरप्राइजिंगली इफ यू सी, और लार्ज कैप्स को तो हमने देखा ही है कि मिड कैप्स ने हैव ओवर द longer period of time, but in Nifty small cap 250 index ko bhi it has beaten by a margin of some 2% CAGR over the last 20 years. So overall, if you look out at this makes a meaningful sense, to overall take exposure into mid cap for long term into your portfolio, because it has the potential to beat whether it is large caps or whether it is small cap as well. So this is the SIP return. So I think which gives us like कि 10,000 रुपए महीने लगाए होते तो मिड कैप में 1,80,00,000 रुपए बन गए होते, रादर देन अगर लार्ज कैप की बात करें तो वो सिर्फ 1,06,00,000 ही बने होते. So this is how the performance has been there for SIPs also in the last 20 years for a mid cap. And this is just the basic details of the fund. So NFO is closing on 16th of June, and exit load is 0.25% if redeemed before 15 days of allotment, else the exit load is nil. So this is basic details about the fund, and I think if we have any questions related to the fund, we can take it now. Thank you. थैंक यू सर. अब वक्त है क्वेश्चन एंड आंसर राउंड का. मैं सभी पार्टिसिपेंट से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपना क्वेश्चन एक एक करके चैट बॉक्स में टाइप करके पूछ सकते हैं. So I think there are no questions. By the time if any questions are coming up, just like to summarize Sir, I that think Vijay from asset Kanjani has raised his hand. Okay.
Baswaraji, I have allowed you to unmute yourself. You can ask your question. So what do you suggest, investment, lump sum or SIP mode in this particular fund? सो सर आंसर बहुत सिंपल है कि अगर आपके पोर्टफोलियो में आज मिड कैप्स टोटली मिसिंग हैं और आपका इक्विटी अलोकेशन इज लोअर एज सजेस्टेड बाय योर एसेट अलोकेशन मॉडल, you can go for lump sum also. Suggested that the tenure should be longer. It should not be a shorter tenure. It should be a longer tenure, horizon of around say 5 years on a minimum side. Then you can go for lump sum. Or else, if you are getting monthly, your cash flows are monthly and you can invest monthly, and you want to do averaging of this volatile periods of market, so then I think SIP is the best route. So probably you can invest in both ways. You can invest in lump sum also and SIP, but today, looking out at the little bit of market scenario, I would say SIP is the preferred route, and lump sum is suggested if you have a horizon of minimum 5 years from now. Okay, how to address the volatilities? I think again, I would come back here only. SIP route जो है वो important है to address the volatility. I think हम लोगों ने पिछले हम 2002 से मार्केट को देखते आ रहे हैं, तो मार्केट सेंसेक्स के लेवल 4000 से लेकर आज 80,000 पे चला गया है. सो इफ यू सी ओवरऑल शॉर्ट टर्म वोलाटिलिटीज आती रहेंगी और इट्स ऑलवेज देयर, और हम अपने सिर्फ असेट अलोकेशन से ही वोलाटिलिटीज को थोड़ा वो कर सकते हैं. मतलब वी कैन फिगर आउट हाउ टू मेंटेन आवर असेट अलोकेशन करेक्ट. इफ वी हैव टू से लाइक द सिनेरियोज ऑफ 2008, राइट? तो 2008 में हमने देखा था कि देयर वाज अ बिगर करेक्शन इनटू द इक्विटी मार्केट्स, लेकिन उसके पहले 2007 तक देयर वाज अ वेरी बिग रैली बिफोर दिस सडन करेक्शन. So many of the people actually forgot the purpose of asset allocation at that point in time. Mostly seeing at the rally till 2007, people actually doubled up their equity investment कि उनको फिर fear of missing out होना शुरू हो जाता है कि यार पड़ोसी ने तो पैसा बना लिया, मैं रह गया. सो उस टाइम पर लोगों ने अपनी एफडी से निकालकर भी पैसा इक्विटी मार्केट में डाल दिया, बट उस टाइम पे वो अपना एसेट एलोकेशन भूल गए कि नहीं, इक्विटी मार्केट की अगर वैल्यूएशन इस लेवल पर है, आज मेरा इक्विटी एलोकेशन क्या होना चाहिए. तो मेरा अगर 60-40 का एलोकेशन था, मैंने शायद उसको लिवरेज कर लिया और 120 और 20 कर लिया अपना इक्विटी वर्सेस डेट, विच वाज नॉट द राइट थिंग. तो सिमिलरली आज की डेट में भी अगर हम देखते हैं, वी फील दैट द वैल्यूएशंस आर कंपैरेटिवली फेयर वैल्यू और कंपैरेटिवली ऑन अ हायर साइड. सो इफ वी आर देयर और हमारी एसेट एलोकेशन इंटैक्ट है, तो देन वी आर ओके. आज की डेट में अगर हमारा इक्विटी एलोकेशन इज मीनिंगफुल एंड अकॉर्डिंग टू आवर रिस्क एपेटाइट एंड मॉडल, then perfectly fine. But if it is lower, we need to increase that, and if it is higher, we need to even book our profits and move towards the, like for example, debt or balanced advantage kind of funds. So I think this is one of the best way to deal with the market volatilities. And SIP, yes, always the best route. How to compare with the similar competition AMC? So I think this is an index fund. When there is an index fund, so there is no difference in the portfolio, because it will track the portfolio the same. It will only track the index only. It is a passive fund. So किसी भी और AMC का अगर निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स फंड है या हमारा है, तो पोर्टफोलियो में तो कोई डिफरेंस नहीं होगा. डिफरेंस जो होगा वो सिर्फ ट्रैकिंग एरर में होगा. तो ट्रैकिंग एरर जो है वो डिपेंड करता है कि कौन सी एएमसी उसको कितनी एफिशिएंटली मैनेज कर पाती है. सो ट्रैकिंग एरर इज बेसिकली द डिफरेंस बिटवीन द इंडेक्स रिटर्न एंड द फंड रिटर्न. सो वो जो एक छोटा सा डिफरेंस होता है ऑफ स्मॉलर बिप्स, राइट, ऑफ द डिफरेंस बिटवीन इंडेक्स एंड द फंड, उसको जो एएमसी ज्यादा अच्छे से मैनेज कर पाती है, बेहतर तरीके से मैनेज कर पाती है, दैट फंड बिकम्स बेटर. I can't comment on this particular fund because this is an NFO, but overall, if you see, Tata Asset Management is running a good number of index funds. You can track their performance and their tracking errors. I hope you will see that we are trying our best to manage efficiently on the tracking error. And once it is launched, definitely once it is allotted, then over a period of time you can compare this fund also on the basis of tracking error. But we are working hard internally because it is not about that हम लोग ये index fund ही launch किया है.
लास्ट ईयर में आपने देखा होगा कि हमने बहुत से इंडेक्स को क्रिएट भी किया है, वर्किंग अलोंग विद एनएससी एंड बीएससी. सो वी आर वर्किंग वेरी क्लोजली on index funds or the passives, I would say, because this is also becoming one of the flavor today. So investors को क्या है कि complementary products चाहिए. It is not about active or passive. It is about active and passive. So there must be some things which will be available into passive side only. Like for example, हमने एक tourism index fund launch किया था, which was very unique idea. So it is still there and it is unique. तो active में आपको available ही नहीं होगा. So it is about active and passive. Today passive industry has grown to 11 lakh crore approximately, if we see. So I think that shows the investors interest also. And always there is a category of investors who don't want to take higher risk or higher expenses into the active funds, and they want to sit idle and just replicate the index, and they're happy with the index returns. So I think it is just about us as a distributor, that are we taking every product to our investor or not, according to the merits of the product. If we are doing that, so definitely I think we can have a larger pie of the portfolio of investors. I hope I answered the question. Very informative. Okay, thank you so much, sir, for your appreciation. Thank you, sir. I think that's it for the questions. And thank you for connecting with us and sharing this information. And I would like to thank all the participants also for joining with us. Thank you, sir. Thank you so much. Thanks for inviting us.